Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Today we are going to read soliloquies in Hamlet. We have read the Hamlet's main character and also its summary. Now we are going towards forward and we are discussing the soliloquies. First of all, we discuss a term soliloquy. What is soliloquy? Soliloquy means when a person talks to himself in solitude. जब कोई शख्स तन्हाई में खुद से बात करता है तो हम उसे soliloquy का नाम देते हैं. It is a dramatic device used by Shakespeare. शेक्सपियर ने इसको इस्तेमाल किया in his play Hamlet. Soliloquy means self conversation, खुद से बात करना, and it is a dramatic technique employed by Shakespeare to probe deep into the mind of central character of the play. प्ले के जो सेंट्रल करेक्टर होता है, मरकज़ी करेक्टर है, मीन्स प्रोटोगनिस्ट है, उसके जहनी ख्यालात को आगाह करने के लिए राइटर ये चीज़ इस्तेमाल करता है. इट इज़ अ डिवाइस थ्रू विच अ ड्रामाटिस्ट कैन कम्युनिकेट द थॉट ऑफ अ करेक्टर टू द ऑडियंस और द रीडर. पढ़ने वाले को या ऑडियंस को, सुनने वाले को करेक्टर के थॉट के बारे में मालूमात देता है राइटर हमारे पास. इस टेक्निक को ऐसे समझ लें, आज के जो दौर में अगर हम कभी ड्रामा देखें या मूवी या फिल्म देखें तो समटाइम्स करेक्टर बोल नहीं रहा होता लेकिन पीछे स्पीकर से आवाज़ आ रही होती है. तो पुराने दिनों के अंदर, शेक्सपियर के डेज़ के अंदर, जब एक स्टेज होती थी, लाइव सीन चल रहा होता था, उसके दौरान तो उस वक्त तो स्पीकर का दौर नहीं था. फिर तमाम करेक्टर स्टेज से हट जाते थे और वो सेंट्रल करेक्टर स्टेज पर मौजूद होता था और वो खुद से बातें करता था. मीन्स वो ऑडियंस को अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बताता था कि अब नेक्स्ट क्या होगा या उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को, जो लोग होते हैं, उनको अपनी जहनी जो सिचुएशन है उसे आगाह करने के लिए मेन कैरेक्टर जो बातें करता था, हम उसको soliloquy का नाम देते हैं. soliloquy is thus a means of character revelation. करेक्टर का इजहार है. It throws additional light on the mental makeup of that character और on the mental progress और deterioration of that character. उसकी जहनी डेवलपमेंट के बारे में या उसकी डिटोरिएशन, डैमनेशन के बारे में जो हमें चीज़ आगाह कर रही होती है वो soliloquy होती है. When he talks to himself. There are the various soliloquies in Hamlet by Prince Hamlet and King Claudius. King Claudius ने भी soliloquies का इस्तेमाल किया है. As far as the thematic significance of the soliloquies is concerned, these soliloquies are of the vital significance. The soliloquy of Hamlet stand out as essential pillars of the dramatic structure. Such tragic speeches give vent to the feelings of the central character. These speeches were accepted by Elizabethan audience. Elizabethan दौर से क्योंकि शेक्सपियर का ताल्लुक था और उस वक्त की जो ऑडियंस थी वो इस चीज़ को पसंद करती थी, इसलिए इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया. वेरी मच बिकॉज थ्रू दिस स्पीचेस करेक्टर गेव एक्सप्रेशन टू देयर पैशंस. वो अपने जज्बात का इजहार कर रहा होता है. Let's try to analyze Hamlet's soliloquies to know what is there in the mind and up to what extent these soliloquies help us in knowing about inward and outward conflicts surrounding Hamlet. जी, नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट soliloquy है. Oh that this too solid flesh would melt thaw and dissolve itself into dew. पहली soliloquy है उसकी, आपने ये लाइन याद रखनी है, आपने हेमलेट की बुक निकालनी है और वहाँ से जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट 2-3 लाइन्स हैं, आपने उसको अच्छी तरह याद करें. अगर आपको पूरी soliloquy याद हो जाए तो वो तो और भी ग्रेट है, लेकिन कम से कम आपको पहली 3-4 लाइन्स आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि soliloquy के अंदर क्या चल रहा है. Says that the first soliloquy is the most important of all for offering a clear understanding of the Hamlet's character. Hamlet character के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है. First soliloquy takes place when the king and the queen have committed on the brooding melancholy of the Hamlet. Hamlet की अफसरदा कंडीशन होती है. Brooding means thoughts over the death of his father. अपने बाप की मौत के ऊपर बहुत परेशान होता है. In the soliloquy, Hamlet reveals the grief that has been growing at his mind. वो अपने जहन के अंदर मौजूद उस दुख का इजहार करता है इस फर्स्ट soliloquy के अंदर. He wishes that religious rules had not been so hard upon the self slaughter. वो ख्वाहिश करता है कि अगर सेल्फ स्लाटर मीन सुसाइड के जो फितरत के कवानीन है अगर वो सख्त ना होते
सुसाइड के ऊपर, ही वुड हैव किल्ड हिमसेल्फ, वो खुद को कत्ल कर लेता। बिकॉज हेमलेट फील्स डिसलाइंड विद द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड सेज, क्योंकि वो इस दुनिया इर्द गिर्द मौजूद दुनिया से बेजार हो चुका है, और वो कहता है हाउ वेरी, थका देने वाले, फ्लैट, स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया की तमाम अशिया मुझे कितना बेकार फजूल नज़र आती हैं। हेमलेट कंपेयर्स द वर्ल्ड टू एन अनवेडेड गार्डन, वो इसे अनवेडेड गार्डन भी कहता है, इन विच रैंक एंड ग्रॉस, घटिया किस्म की थिंग्स, चीज़ें ग्रो इन एबंडेंस, बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होते हैं। मीन्स ये ऐसा गार्डन है जो अनवीडेड है। देन ही डिप्लोर्स हिज मदर्स करेक्टर, फिर अपनी माँ के करेक्टर को भी बयान करता है। रिवील्स द फैक्ट दैट हर मदर रीमैरिड बारली 3 months लेटर आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कि उसकी माँ ने बमुश्किल 3 महीने बाद अपने पहले शोहर की मरने के बाद उसने शादी कर ली। नाउ शी मैरिड अ मैन सच मच इन्फीरियर टू द हस्बैंड, और ऐसे शख्स से शादी की जो उसके शोहर से बहुत ज़्यादा कमतर है। ही हैज़ लॉस्ट, जिसे वो खो चुकी थी। हर ओवर हेस्टी मैरिज विच हेमलेट कंसीडर एन इंसेस्टियस थिंग, उसका जल्द शादी कर लेना जिसे हेमलेट के मुताबिक नाजायज़ चीज़ है, इंसेस्टियस, मेक्स हेमलेट टू थिंक दैट वुमेन आर वीक एंड इनकन्सिस्टेंट क्रिएचर। ये बात उसे इस बात पे सोच मजबूर कर देती है कि औरत क्या है, हमारे पास एक कमतर मखलूक है। ही जनरलाइजेज, और वो सब के लिए कहता है, औरत के लिए फ़िक्रा यूज़ करता है। फ्राइल्टी द नेम इज़ वुमन, औरत तुम्हारा नाम धोखा है, और ये बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है उसकी। इवन अ बीस्ट वुड हैव मोर्न फॉर अ लॉन्गर टाइम, हत्ता कि एक दरिंदा, एक वहशी भी कुछ ज़्यादा देर इंतज़ार कर लेता। दिस सॉलिलोक्वी शोज़ द मेडिटेटिव नेचर ऑफ द हेमलेट, हेमलेट की सोच और विचार वाली सलाहियत को ज़ाहिर कर रही है। इट आल्सो शोज़ द करेक्टर ऑफ द लेट किंग हेमलेट्स फादर, ये हेमलेट फादर के करेक्टर को भी बयान कर रही है। सॉलिलोक्वी हु वाज एन एक्सीलेंट किंग एंड अ लविंग हस्बैंड, जो कि बहुत ही प्यारा, अच्छा, मोहब्बत करने वाला शोहर था। दिस सॉलिलोक्वी आल्सो शोज़ हेमलेट्स अटैचमेंट टू हिज फादर, ये सॉलिलोक्वी में ये भी बताते कि हेमलेट अपने बाप से कितना अटैच था। हिज रेफरेंस टू द हरक्यूलिस, नयाब एंड हाइपेरियन, दीज आर द ग्रीक गॉड्स, नेम ऑफ द ग्रीक गॉड्स, और वो अपने बाप को, हेमलेट सीनियर को, हरक्यूलिस, न्यूब्स और हाइपेरियन से मुशाबह देता था। शोज़ हिम टू बी वेल वर्स्ड इन क्लासिकल लिटरेचर। क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमें यहाँ से मिलते हैं, ब्रूडिंग नेचर ऑफ द हेमलेट्स, हेमलेट का सोचो विचार करने वाली फितरत, एनालिटिकल पर्सनैलिटी है, सेल्फ स्लॉटर, अ कंट्रोवर्शियल इशू, जो कि बहस वाला मामला है, किसी के करीब के ये ठीक है, किसी के करीब ये नहीं है। लैंग्वेज बिलोंग्स टू स्टैंडर्ड वैरायटी, बहुत अच्छी लैंग्वेज इसने वैरायटी की यूज़ किया। शेक्सपियर इज़ हार्ड अपॉन वीमेन, औरतों के साथ बड़ा सख्त रवैया इसका। इस सॉलिलोक्वी में जब वो कहता है फ्राइल्टी द नेम इज़ वीमेन, औरत तुम्हारा नाम धोखा है, तो ये जनरलाइज सब के लिए कह देता है। ओवर जनरलाइजेशन यानी कि हद से ज़्यादा आगे निकल जाना। प्लेस व्हेन द किंग एंड क्वीन हैव कमिटेड, सॉरी ये अगेन रिपीट हो गया असाइनमेंट पेज ये वाला। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, हमारे पास है dominant tendencies of the age are reflected through this soliloquy। dominant tendencies, वहाँ पर जो जो रुझानात, जो चीज़ें डोमिनेंट थी, वो इस soliloquy के अंदर हमें पता चलती हैं। hence the thematically this soliloquy tells us what has been done and what may happen next। हमें बताया जा सकता है कि क्या क्या वाक़यात हो चुके हैं। मीन्स हेमलेट सीनियर मर चुका है, उसकी बीवी ने नई शादी कर ली है, क्लाडिस ने कत्ल किया, ये तमाम चीज़ें, जो चीज़ें हो चुकी हैं और आगे क्या होने वाला है, तो ये तमाम चीज़ें हमें फर्स्ट सॉलिलोक्वी से पता चलती हैं। सेकंड सॉलिलोक्वी ऑफ हेमलेट, ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ अर्थ, व्हाट एल्स, एंड शैल आई कपल hell, oh fie, hold my heart, oh all of you host of heaven, आसमान और ज़मीनों की लोगों को पुकारता है, ओ अर्थ, ज़मीनों के, व्हाट एल्स, हर चीज़ को, एंड शैल ए कपल हेल, क्या मैं दोज़ख को कॉल करूं या उसकी तरफ मुखातिब हूँ। होल्ड माई हार्ट, मेरे दिल तो सब्र कर जा। द सेकंड सॉलिलोक्वी अकर्स आफ्टर हेमलेट्स मीटिंग विद द घोस्ट, दूसरी सॉलिलोक्वी उस वक्त रूनुमा होती है जब हेमलेट की घोस्ट के साथ मुलाकात हो जाती है। ही एक्सप्रेसेस हिज रूड शॉक ही हैज़ सस्टेन्ड, घोस्ट हैज़ नॉट ओनली मेड शॉकिंग रेवलेशन बट आल्सो इम्पोज्ड अपॉन हिम द ड्यूटी टू रिवेंज हिज फादर्स मर्डर। घोस्ट ना सिर्फ अपने दर्द के बारे में बताते हैं बल्कि ये जिम्मा भी लगाते हैं कि तुमने अपने बाप की मौत का बदला लेना है। हेमलेट देन डिटरमिन्स
टू वाइप आउट ऑल अदर थाट्स फ्रॉम हिज माइंड, के अपने दिमाग से तमाम दूसरे ख्यालात निकाल देगा, एंड टू प्रिजर्व ओनली द घोस्ट कमांड्स, और घोस्ट की बात के ऊपर अमल करेगा. द मैनर इन विच हैमलेट स्पीक्स हियर मेक्स अस थिंक दैट ही विल सून प्लंज इनटू एक्शन एंड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ द घोस्ट. जिस तरीके से वो बात करता है इस सोलो के, ऐसे लगता है कि जैसे वो फौरी तौर पर बदला ले लेगा और घोस्ट की बात पर अमल कर लेगा. बट वी आर मच डिसीव्ड इन थिंकिंग, लेकिन हमारी सोच है वो गलत होती है. हैमलेट देन रेफर्स टू हिज मदर्स एज अ मोस्ट परनिशियस वुमन, बड़ी जालिम औरत, अपनी माँ के बारे में कहता है. स्मेलिंग डैम विलियम, एक हंसने वाली मनहूस दुश्मन. We see that Hamlet turned towards the generalization and says, "Oh may smile and be a villain." उस हंसी को भी वो क्या कर देता है, धोखा कह देता है, जनरलाइजेशन की तरफ जाता है. Right from the very beginning, Hamlet finds himself unfit for the task he has been assigned by the ghost of his father. The theme of the revenge is first time introduced in the soliloquy. इसी soliloquy के अंदर पहले रिवेंज का थीम हमें मिलता है. क्रिटिकल पॉइंट्स से सेकंड soliloquy इसके अंदर आएंगे. Hamlet undergoes a shocking mental shock. साफ ज़ाहिर है, obviously इसके अंदर mental shock है उसको. Entirely disturbed that such a pleasurable looking man, ये ए नहीं आएगा इसके अंदर, एबल का जो ए लगा ना, pleasurable लुकिंग मैन कैन बी अ विलन, के किस तरह से एक अच्छा नज़र आने वाला ज़ाहरी तौर पर शख्स एक धोखेबाज हो सकता है. थीम ऑफ अपेयरेंस एंड रियलिटी, के ज़ाहरी तौर पर क्लाडियस बहुत अच्छा बना रहा, अंदर में वो क्या था, एक दगाबाज इंसान था. थीम ऑफ द रिवेंज इंट्रोड्यूस हाईलाइट द एबिलिटी टू एक्ट क्विकली इन हैमलेट, यहाँ पर दिखाया कि हैमलेट जल्दी अमल करेगा, बदला लेगा. हेंस थीमेटिकली इट सीम्स that soon after his soliloquy Hamlet will take action, but what happens actually is otherwise. लेकिन जो कुछ होता है वो कुछ और होता है. कहने का मतलब है कि बाजार से लगता है हैमलेट फौरी तौर पर एक्शन लेगा, लेकिन हैमलेट ऐसा कुछ भी नहीं करता और ये प्ले तकरीबन कितना लेंथ में चला जाता है. थर्ड soliloquy हमारे पास आती है. इन द थर्ड soliloquy एक्ट 2 सीन 2, याद रखिएगा आपने एक्ट और सीन को याद रखना है. A play, whole play in the Renaissance age, in the old period, a whole play is divided into 5 acts. 5 एक्ट में उसको तकसीम किया जाता है, जैसे कि हैमलेट के भी 5 एक्ट हैं. एंड ईच एक्ट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सीन, और हर एक्ट को मज़ीद सीन में तकसीम किया जाता है. सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 तक जा सकते हैं. तो ये क्या है, एक्ट दूसरा चल रहा है और सीन भी दूसरा है हमारे पास, उसके अंदर ये बात की गई है. हैमलेट एक्यूजेस हिमसेल्फ फॉर हिज डिले इन एवेंजिंग हिज फादर्स मर्डर, वो खुद पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपने बाप का बदला नहीं ले रहा. No one can more harsh on Hamlet on the subject of the neglecting his duty than Hamlet himself. कोई भी इतना उसके ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जितना वो अपने ऊपर खुद इस्तेमाल कर रहा होता है. He regards himself a dull and a muddy, matted rogue and rascal and peasant slave, for he has done nothing to take revenge of his father's murder. वो खुद को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने बाप का बदला नहीं लिया उसने अभी तक. इट इज़ अ नेचुरल थिंग डैट मेक्स हिम आस्क, ये फितरती अमल है कि उसके जहन पर इतना आ जाती है बात कि वो खुद को कहता है एम आई अ कवर्ड. ही देन डिक्लेयर्स डैट ही शुड एक्ट एंड नॉट, कि वो फिर बात पे एहसास करता है, ऐलान करता है कि उसे अमल करना चाहिए, वो बदला लेगा, ना कि लाइक अ होर कहते हैं प्रोस्टिट्यूट, वो एक तवाइफ की तरह रहेगा. अनपैक माई हार्ट विद वर्ड्स एंड फॉल अ कर्सिंग लाइक अ वेरी ड्रैब, ना यानी कि अल्फाज की तरह से बात नहीं करेगा बल्कि वो एक तरीके से अमल करेगा, अच्छी तरह बदला लेगा अपने बाप की मौत का. ही फील्स हिज एंगर विद विकेड थाट्स एंड रिगार्ड्स हिज अंकल एज, और अपने बाप को वो बड़े सख्त अल्फाज में याद करता है, अपने अंकल को बड़े सख्त अल्फाज में याद करता है. क्लाडियस को कहता है ब्लडी वॉ, विलन, रिमोर्सलेस, जिस पर रहम ना किया जाए, ट्रिकियस, धोखेबाज, लिचरस, शहवत वाला, काइंडलेस, बेरहम, विलन, दगाबाज. इन द एंड ऑफ हिज soliloquy we see him planning to enact the mouse trap. इस soliloquy के आखिर के अंदर वो एक प्ले भी खेलता है माउस ट्रैप वाला. माउस ट्रैप का मतलब आपको लफ्ज़ी मतलब है कि चूहे का फंसना, यहाँ पर है कि शिकार का फंसना. मर्डर ऑफ गोंजागो आपने पढ़ा था, उसके अंदर करेक्टर होता है, प्ले का नाम होता है मर्डर ऑफ गोंजागो, और वो इसको नाम देता है माउस ट्रैप. इसके अंदर क्या करता है, उसे शक होता है कि मे बी घोस्ट सही ना हो, वो कोई शैतान की रूह हो जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हो या मुझसे कोई गलत अमल करवा ले. तो वो क्लाडियस को कत्ल करने से पहले भांपना चाहता है, जानना चाहता है कि आया कि क्लाडियस ही वाकई मेरे बाप का कातिल है या नहीं. तो जिस तरीके से क्लाडियस ने
हेमलेट सीनियर को मारा था और हेमलेट सीनियर ने बताया था इसने मेरे कान में जहर डाला, बिल्कुल वही का वही प्ले क्लाडियस के सामने कराता है और इसको माउस ट्रैप का नाम दिया जाता है, सिर्फ जस्ट टू कैच द कॉन्साइंस ऑफ द किंग, बादशाह की शक व शुबात को, बादशाह के इरादों को जानने के लिए। ही आल्सो सस्पेक्ट्स, उसे शक होता है, द नेचर ऑफ द स्पिरिट एंड इट्स वैलिडिटी एज वेल। ही सेज, वो कहता है द स्पिरिट दैट आई हैव सीन, वो रूह जिसे मैंने देखा है, मे बी अ डेविल, वो शैतान हो, एंड डेविल हैज पावर टू अज्यूम अ प्लीजिंग शेप, और शैतानों के पास मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करने की ताकत होती है, इसलिए वो मॉडल ऑफ अपना माउस टाइप का प्ले करता है। क्रिटिकल पॉइंट्स में आते हैं, हाई वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज है, सेल्फ एक्विजिशन है, इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द एक्शन, यानी कि बदला लेने की तरफ उसके रुझान है। हैमलेट लाइक अ टिपिकल शेक्सपियरियन हीरो पासेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सेल्फ एनालिसिस, वो अपना तजिया कर रहा होता है कि यार मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना गंदा हूँ, वो खुद को गालियाँ देता है कि मैंने अभी तक बदला नहीं लिया। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द मेटाफॉर, मडी, मेटल, रास्कल, मुख्तलिफ किस्म के मेटाफॉर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन व्हाट थिंग्स आर एंड व्हाट दे शुड बी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यहाँ पर जिक्र है, मीन्स घोस्ट की बात होती है। हेंस थीमेटिकली वी सी दैट हैमलेट इज टॉर्न बिटवीन द टू एक्सट्रीम एंड अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट टू से दैट हैमलेट इज़ मोर ऑफ थिंकिंग दैन एक्शन, कि एक्शन के बजाय हैमलेट दोबारा थिंकिंग के ऊपर तवज्जो करता है। Hamlet's fourth soliloquy. This soliloquy is the most famous and the most celebrated because it is the most philosophical of all. Philosophical line इसके अंदर इसने यूज़ की हैं। We have a mental debate. We find Hamlet on the horns of the dilemma. वो dilemma के स्टेज के ऊपर है और वो लाइन्स पर कहता है to be or not to be, that is a question. Whether it is noble to suffer in the mind. कि टू बी और नॉट टू बी, इसके कितने सारे मीनिंग्स ले जा सकते हैं। मसलन कि मैं बदला लूँ या ना लूँ, मैं आगे की तरफ बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तो डैट इज़ द क्वेश्चन, ये ज़ाहिन है। ही आस्क विच ऑफ द टू अल्टरनेटिव इज़ नोबलर, वेदर साइलेंटली टू सफ़र क्रूअल्टीज़ ऑफ द फेट, आया कि वो इस किस्मत की ज़ालिमाना असर को चुप करके बर्दाश्त कर ले और पुट अप अ फाइट अगेंस्ट द मिसफॉर्चून ऑफ द लाइफ, या ज़िंदगी के इस बदकिस्मती के खिलाफ लड़ाई लड़े। ही विशेस टू कमिट सुसाइड फॉर ही थिंक्स इन दैट स्लीप ही कैन फॉरगेट ऑल द इवल्स ऑफ द लाइफ, वो सोचता है, ख्वाहिश करता है कि वो सुसाइड कर ले ताकि वो जब सो जाएगा तो सोते हुआ बंदे को हर चीज़ भूल जाती है, तो वो भी ये बात भूल जाएगा। बट वट scares him, लेकिन जो चीज़ उसे डराती है, मैन एंड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम द कमिटिंग सुसाइड इज द थॉट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एंड द अननोन लाइफ, वो अनजान दुनिया के बारे में उसे डर लग जाता है आफ्टर डेथ, जो मौत के बाद आएगी, कि पता नहीं सुसाइड के बाद क्या होगा, क्या पता फिर मेरी बख्शिश हो या ना हो। द फियर ऑफ दिस थाट मेक्स मैन कवर्ड, इसकी वजह से लोग बुज़दिल हो जाते हैं और वो खुदकुशी नहीं करते। दस द नेटिव व्यू ऑफ द रेजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ द थाट, यानी कि सोच के आलम के अंदर इंसान क्या हो जाता है, काफ़ी सारा रिजर्व हो जाता है। दिस सोलिलोक्वी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पैसेज एंड द मास्टर पीसेस फॉर इट कन्वेज द universal fear of the death spoken in the moment of the dejection and the despair. This soliloquy gives us insight into Hamlet's character. इस soliloquy में हमें Hamlet के कैरेक्टर के अंदर का पता चलता है। This also shows us his melancholic condition, उसकी अफसुर्दा हालत भी पता चलती है, and the mental structure he is undergoing, mental torture he is undergoing due to his incapabilities, उसकी सलाहियत की कमज़ोरियों की वजह से उसके जो मेंटल टॉर्चर उसको होता है, उसको भी हमें पता चलता है इस soliloquy के अंदर। एब्रप्ट ओपनिंग, फौरी तौर पर, यानी कि अपने आप को अपनी ख्वाहिशात का असर करता है, टू बी और नॉट टू बी, मैं करूँ या ना करूँ। हाई वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, मेटाफोरिकल लैंग्वेज, कंसेप्ट ऑफ डिवाइन जस्टिस, रिटोरिक क्वेश्चन, सेल्फ स्लॉटर, सेल्फ एनालिसिस, ये तमाम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। हेंस थीमेटिकली वी सी ऑलमोस्ट no development in the Hamlet's character and in the play because Hamlet is still torn between the two extremes. Hamlet अभी भी फंसा हुआ है to be or not to be condition में, मैं करूँ या ना करूँ। Hamlet's fifth soliloquy. Hamlet's fifth soliloquy occurs when he was on his way to meet his mother in the closet. जब वो रास्ते में जा रहा हो तो अपनी माँ से मिलने के लिए अकेले में, he sees the King Claudius at prayer and gets an opportunity to kill him.
किंग क्लाडियस को वो दुआ में मशगूल देखता है और उसके पास मौका होता है कि उसको मार सकता है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर विच ही इज़ लॉन्गिंग सो फॉर येट, ऐसा मौका जिसके लिए वो काफ़ी अर्से से, यानी कि वो ऐसा वो काफ़ी अर्से की इस मौके की तलाश में होता है। ही डज़ नॉट डू इट, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। नाउ माइट आई डू इट पैट, अब मैं इसके साथ ऐसा करूं। वाइल, ये ए वाला लफ्ज़ नहीं है, ही इज़ अ प्रेइंग एंड नाउ आई विल डू इट एंड सो ही गोज़ टू हेवन। हैमलेट यहाँ पर सोचता है कि किंग क्लॉडियस अब दुआ में मशगूल है, मीन्स ही इज़ डूइंग सम गुड एक्ट। इफ़ आई विल किल हिम देन ही मे गो टू हेवन। He want to take such kind of revenge that after his death he must go into hell. वो ऐसा बदला लेना चाहता है कि जब मैं इसको कत्ल करूं तो इसका ठिकाना जहन्नम बने, इसलिए वो इसको यहाँ पर इस मौके पर नहीं मारता। जस्ट एट द सेम मोमेंट हैमलेट बिगिंस टू थिंक दैट किंग क्लॉडियस किल्ड हिज फादर विदाउट इवन गिविंग हिम एनी टाइम टू रिपेंट और टू प्रे। वो इस तरह से बदला लेना चाहता है कि जिस तरह से किंग हैमलेट को, मीन्स हैमलेट सीनियर को क्लॉडियस ने पछताने का मौका ही नहीं दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर और उसको अचानक मौत दे दी, तो हैमलेट जूनियर भी इस तरह चाहता है कि वो भी क्लॉडियस को ऐसी मौत है ताकि इसको भी आगे जाकर जहन्नम ही नसीब हो। सो ही डिसाइड दैट ही शुड किल क्लॉडियस नॉट वाइल ही इज़ डूइंग अ गुड एक्ट लाइक प्रेयर बट व्हेन ही इंडल्ज इन सम बैड एक्ट, जब वो कोई गलत काम कर रहा होगा। कौन सा? व्हेन ही इज़ ड्रंकन स्लीप, जब वो शराब पीकर सोया हुआ होगा, और इन हिज रेज, या अपने गुस्से में होगा, एंड इन द एंसेस्टर प्लेयर ऑफ हिज बेड, या बिस्तर में कोई गलत काम कर रहा होगा, मीन्स हैविंग सेक्सुअल एक्ट। एट गेम स्वेरिंग और अबाउट सम एक्ट दैट हैज़ नॉट रिलेशन ऑफ सेलिब्रेशन इन इट, ऐसा काम कर रहा होगा जिसमें किसी किस्म की कोई निजात की गुंजाइश ना हो, मीन्स ही विल डायरेक्टली गोज टू हेल। सच एज हिज रीजनिंग बार्डली सेज द soliloquy टू फर्दर लेस एम्फोसिस ऑन हिज डिले, ये soliloquy हमें बताती है कि वो देर क्यों कर रहा है। प्रोकास्टिनेशन नेचर, उसकी देर करने वाली फितरत क्यों बन गई है, मीन्स ही वांट्स टू टेक सवियर रिवेंज, वो कोई सख्त बदला लेना चाहता है। दिस soliloquy फॉर्म्स द क्राइसिस ऑफ द प्ले एंड हाईलाइट्स व्हाई हैमलेट इज डिलेइंग इन एग्जीक्यूटिंग रिवेंज, कि वो बदला लेने में क्यों देर कर रहा है, हमें यहाँ पर पता चलता है। कि क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ पोएटिक जस्टिस, character of the Claudius is revealed, Hamlet's religious knowledge is obvious, Hamlet's meditative nature, सोचने वाली। Sixth soliloquy हमारे पास आती है। Hamlet's sixth soliloquy, Act 3, Scene 3, occurs when he is about to go to the mother's chamber, जब अपनी माँ के चैम्बर में जाने के लिए तैयार होता है। इन रिस्पॉन्स ऑफ हर समन, जब उसकी माँ उसे बुलाती है। ही इज़ एंग्री विद हिज मदर, अपनी माँ से गुस्से में, एंड हिज डिस्गस्ट विद हर मेक्स हिम to think that it is a best time for, उसके अंदर उसकी माँ की नफरत इतना भरी होती है कि वो ये अल्फाज बोलता है, ड्रिंक हॉट ब्लड, कि मैंने इतना सख्त तकलीफ़ें बर्दाश्त की हुई हैं, विच इवन द डे विद वुड क्वेक टू लुक ऑन, के दिन की रोशनी के अंदर भी लोग नहीं कर सकेंगे। मीन्स मैंने ऐसी दर्दनाक परेशानी में मुब्तला हूँ कि जिसमें कोई और भी नहीं हो सकता। ही वॉन्ट्स टू बी क्रूअल टू हिज मदर, अपनी माँ के साथ बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल करना चाहता है, एंड टू किल हर, उसे कत्ल करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम ही वॉन्ट्स टू रिस्पेक्ट द घोस्ट वर्ड्स, फिर वो उस रूह के अल्फाजों की कदर करता है, एंड आल्सो डज नॉट वांट टू फॉलो द एक्शन ऑफ नैरो, और वो नैरो के अमल पर अमल नहीं करना चाहता। अ ग्रीक पर्सन था हु किल्स हिज मदर, जो अपनी माँ को मार देता है, ये नैरो की तरह अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था। दिस soliloquy shows Hamlet's refined nature, his love for his mother and his respect for his father's ghost words. Critical points है Hamlet a tone personality, high variety of language. Hamlet is more of thinking than an action. एक्शन के बजाय वो थिंकिंग बहुत करता है। Hamlet's seventh soliloquy and the last soliloquy. Hamlet's failure to seize an occasion and put an end to the Claudius leads us to the final soliloquy. हैमलेट का मुकम्मल देर कर देना, मौके की तलाश को ज़ाय कर देना, मौका का ना मिलना, हम इस फाइनल soliloquy की तरफ ले जाता है। बाय द ग्रेजुअल प्रोसेस फ्रॉम हिज टॉक टू कैप्टन ही कम्स टू नो दैट द यंग Fortinbras इज़ प्रिपेयर्ड टू रिस्क
his life and the lives of the 20,000 people for the sake of his honor. फोर्टन ब्रास बड़े गुस्से में होता है क्योंकि फोर्टन ब्रास के और इसके हैमिल्ट सीनियर के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं रह चुके होते। अब फोर्टन ब्रास हमला करने वाला है और किंग अपना शहजादा हैमलेट को पता चलता है कि फोर्टन ब्रास हमला करने वाला है, ना सिर्फ उस पर बल्कि उसके 20,000 सिपाहियों की ज़िंदगी भी ख़तरे में है, सिर्फ इसलिए कि उसकी इज़्ज़त को नुकसान पहुंचा। ही देन थिंक when फोर्टनब्रास does all this just for the sake of his honor, कि जब फोर्टनब्रास अपनी इज़्ज़त की खातिर इतना कुछ कर सकता है, 20,000 लोगों की जानें ले सकता है, then why has he not done anything rather he has, तो फिर उसने हैमलेट ने अभी तक क्यों ऐसा नहीं किया? Cause and will, strength and means to do it. He tries to find out the reason of his delay, whether it be Bristol oblivion, etc. Some craven scruple of thinking too precisely on someone event, यानी कि कुछ भी हो, लेकिन उसे परेशानी खाई जा रही है कि उसने अभी तक बदला क्यों नहीं लिया। Then Hamlet thinks about the purpose of the human creation by God. फिर हैमलेट सोचता है कि इंसान को खुदा ने बनाया, मकसद क्या है। If the aim is to feed and sleep, अगर मकसद सिर्फ उनको खाना खिलाना और सोने का है, he consider them no more, वो उन्हें कुछ भी नहीं समझता। Then a beast, के ये सिर्फ वहशी हैं। He feels that God has not endowed us with such, कि खुदा ने हमें क्या ऐसी सलाहियतों से नहीं नवाजा, कैपेबिलिटीज एंड गॉड लाइक रीज़न in first with the unused, और ऐसी खूबियाँ जो हमारे अंदर खुदादा सलाहियतें हैं कि हम अगर उनको इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हैमलेट्स philosophies are in this soliloquies are universal truth and his generalizing nature is obvious from the soliloquy. इस soliloquy से जनरलाइजिंग नेचर उसकी वाज़ेह है कि सबके बारे में जब वो बात कर रहा होता है। की क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास। हैमलेट स्कॉलरली नेचर, हैमलेट का आलमाना फयाजाना फितरत, हैमलेट इज़ द टर्न बिटवीन द व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हैमलेट्स मिस्टेक नेचर when he thinks the purpose of the man's creation, मिस्टेक यानी सूफियाना फितरत है, जब वो सोचता है कि इंसान की क्रिएशन कैसी है। अगर सिर्फ खाना पीना है तो वो एक वहशी है, वरना खुदा ने हमें क्या सलाहियतों से नहीं नवाजा। हैमलेट्स मेडिटेशन नेचर, सोचो विचार वाली फितरत, कंसेप्ट ऑफ द ट्रेजिक पेस्ट। एंड में कंक्लूजन हम देखते हैं, दिस soliloquies इन हैमलेट सर्व द ड्रामेटिक पर्पज ऑफ द रिवीलिंग द हीरोज़ कैरेक्टर। अब इस हर soliloquy पहली दूसरी से लेकर 7 तक हम हर soliloquy में देखें कि हैमलेट अपनी मेंटल स्टेट का इजहार कर रहा होता है कि अब वो किस हालत में है, अब वो किस हालत में है, और ऑडियंस को अपनी कंडीशंस के बारे में बताता है। और ये एक ड्रामेटिक पर्पज़ होता है soliloquy के अंदर कि जब करेक्टर अपनी दिल की बात, अपनी जहनी हालत को लोगों को बताता है। एंड ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, और ये बड़ी अहमियत की है, थ्रू दीज soliloquies वी केम टू नो व्हाट न्यू टर्न प्ले इज़ गोइंग टू टेक, कि अब प्ले के अंदर नया टर्न कैसे आने वाला है। इन चीज़ों से हमें पता लगता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये हमारे चैप्टर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।